ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے۔ آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ، اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیں؟ تم بعد میں چلی جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ مزید بولیں، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا، رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے، وہ شاید بتانا نہیں چاہتے۔ اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ کوریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کا گال تھپکتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو، آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، ہاں آؤ تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر 2 سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھینچ لیا۔ اچانک ان کے چہرے سے بے حسی چلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اس سے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئی تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کے لہردار بالوں کی سٹیپ کٹنگ کمر کے خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ البتہ ان کی فگر پر عمر کا کچھ خاص اثر نہیں پڑ سکا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی رو نور الہدیٰ کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا۔ کن پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں لوگوں کو ساتھ دے کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی، میٹ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے ابھی آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی، کچھ سوچا، پھر آخر میں اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں عنصر کیسا لگتا ہے؟ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا، جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کیسا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم، اس نے پہلے اٹھتے ہی کی۔ معلوم کیوں نہیں ہے، آخر تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہوگی، جب وہ پڑھنے کے لیے ایبروڈ چلا گیا تھا۔ وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا وینڈور ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو بس تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ ہی دیا، عنصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ خود؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو عروسہ نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔
वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाज़त मांग रही है। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया, मगर जाहिर है आखिरी फैसला तुमको ही करना है, सोच समझ कर जवाब देना। मामा, लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा पर मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो, इस बार कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम शादी के बारे में कब सीरियस होगी। मामा प्लीज़ इस जिक्र को अभी रहने दे, उसने कोशिश करके बोल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? जाहिर सी बात है ये सवाल उससे जवाब मांगने के लिए नहीं किया गया था। 24 साल, वो बोली, और जब मैं 24 साल की थी तो तुम मेरी गोद में थी। वो रुककर उसकी फक होती शक्ल देखकर बोली, मैंने पहले भी तुमसे कहा है और अब फिर कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है तो खुलकर कह दो, मुझे या किसी भी दूसरे शख्स को कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी आंखों में एकदम ही शायान का चेहरा उभर आया तो उसने सख्ती से पलकें बंद की, फिर खोलकर उन्हें देखा। और अगर तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है तो बेटा मैं कहूँगी तुम्हारे लिए अंसर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तवक्कुफ किया, फिर प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। तानिया, ये वक्त जो इस पल तुम्हारे हाथ में है बहुत खूबसूरत है, इसे ना गवाओ। मैं जाऊँ? कुछ देर बाद उसने हल्के से पूछा। हाँ जाओ, उन्होंने इजाज़त देते हुए कहा। उनके पास से उठकर वो दादा जान के पास आ गई। तुम गई नहीं? वो खिलाफे मामूल उस वक्त उसे घर में देखकर हैरान हुए। बस जा ही रही हूँ। फिर बेड पर उनके बराबर टिकते हुए बोली, जहाँ वो नींद दराज थे, अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देखकर ठीक हो गई है। वो कसदन मुस्कुराई। अजहर फारूकी कुछ झिझके फिर पूछा, नूरुल हुदा अभी घर पर हैं? नहीं, वो ऑफिस जा चुके हैं। आहिस्ता से कहकर उसने उनका हाथ चूम कर कहा, आई लव यू दादा जान। वो जानती थी कि अल्फाज उनकी तकलीफ का नेमोल बदल नहीं हो सकते, फिर भी वो मुस्कुराए तो उसे हौसला हुआ। फिर उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहकर वो बाहर पोर्च में आके अपनी कार रिवर्स कर रही थी कि डॉक्टर सिराज बैक भी मिरर में गेट से अंदर आए थे दिखाई दिए। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही खिड़की से सर निकाल कर बोली, डॉक्टर साहब आप इस वक्त वैसे ठीक वक्त पर आए, आज दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो खिड़की के पास आकर झुकते हुए बोले, हर मंगल को मुझे कर्नल साहब के चेकअप के लिए आना ही होता है और आज भी मैं शाम को आने ही वाला था, पर फारूकी साहब का फ़ोन आया कि कर्नल साहब की तबीयत नासाज है, तो मैं सुबह आ गया। आपको पापा ने फ़ोन किया है? वो खुशगवार हैरत से बोली, हाँ। अच्छा, वो हंसी, ये बात दादा जान को ज़रूर बताइएगा। बता दूंगा, वो नासमझी से बोले, और तानिया उन्हें हैरान छोड़कर अपनी कार निकाल लेगी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में कितनी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। यूं ही कैलेंडर को देखते हुए तानिया को एहसास हुआ कि शायान को सफ़र के 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे और इस तमाम अरसे में शायान की सूरत देखना तो दूर, उसने शायान की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। हालांकि उसका दिल बहुत चाहा कम अज़ कम एक बार तो उसे फ़ोन कर ले, मगर उसने सख्ती से खुद को रोक लिया। वो इतनी अर्जा भी नहीं थी। इंटरकॉम की बीप पर उसका ध्यान बटा। हेलो। इंटरकॉम का बटन प्रेस करते हुए उसने कहा, मैडम मिस फ़ाइज़ा आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ अंदर भेजो और चाय भी। फ़ाइज़ा के नाम पर वो सीधी होकर बैठ गई। तानिया हैरान होकर फ़ाइज़ा के यूँ ऑफिस आने की वजह सोचने लगी। चंद लम्हों बाद फ़ाइज़ा एकदम से उसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो आते ही बोली, शायान के फादर को हार्ट अटैक हुआ है। तानिया कितनी ही देर कुछ बोल नहीं सकी, फिर कोशिश करके उसने खुद को हिलने पर आमादा किया। वो ठीक है? समझो जान बची है। फ़ाइज़ा खुद भी परेशान नज़र आ रही थी। ये भी बड़ी बात है। तानिया ने उसे दिलासा देने को कहा, फिर पूछा, अब उनकी कंडीशन कैसी है? अभी तो सुबह उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया, परसों रात से तो आईसीयू में थे। तानिया को ख्याल आया कि वो जब से आई है खड़ी है। अच्छा बैठ तो जाओ। नहीं, वो उसी तरह खड़ी रही। मैं अस्पताल जा रही हूँ, रास्ते में तुम्हारा ऑफिस आया तो सोचा तुम्हें इतला कर दूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तानिया ने जल्दी से कहा, फिर इंटरकॉम पर तारिक साहब को बैठने का कहकर अपने सामने खुली फाइलें समेटने लगी। यस मैडम। ज़रा देर में एक उधेड़ उमर साहब ऑफिस में थे। तारिक साहब, ये फाइल मैंने देख ली है, जैसे ही पापा फैक्ट्री से आए साइन करवा लीजिएगा और ये कोटेशन सुप्रीम कोर्ट कॉरपोरेशन को आज ही फैक्स हो जानी चाहिए। और अगर पापा मेरा पूछे तो कह दीजिएगा ज़रूरी काम से गई हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगी। जल्दी जल्दी बोलते उसने 2 फाइलें उनको पकड़ाई, फिर बैग का स्ट्रिप कंधे पर डालकर मोबाइल और चाबियाँ उठाती फ़ाइज़ा को अपने पीछे आने का इशारा करती ऑफिस से निकल गई। फ़ाइज़ा के बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कौन से अस्पताल में है? आगा जान। सड़क पर आते ही तानिया ने पूछा था और फ़ाइज़ा के जवाब पर वो खामोशी से ड्राइव करने लगी, मगर कुछ याद आने पर पूछा, शायान को पता है? अंकल को हार्ट अटैक हफ्ते की रात को हुआ था और शान हर वीकेंड पर कराची आता ही है। अंकल को अस्पताल भी वही लेकर गया था। तानिया ने हैरत से उसे देखा। शान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ। फ़ाइज़ा ने उसके लहजे पर ध्यान दिए बगैर कहा।
बहुत परेशान है बेचारा, मुझे तो डर है कि खुद बीमार ना पड़ जाए। अंकल से मोहब्बत भी तो बहुत करता है, परसों रात से हॉस्पिटल में है, एक पल के लिए नहीं सोया, ना खाने पीने का ही कुछ होश है। वो शयान का अहवाल क्या सुनती, अभी तक उसकी हैरत ही ख़त्म नहीं हुई थी। फ़ाइज़ा ज़रा देर को खामोश हुई तो उसने फिर पूछा, फ़ाइज़ा क्या वाकई शयान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ बाबा, हर वीकेंड पर। वो तानिया की बार बार की तकरार से उलझ गई। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो और बात है, वरना वो अपनी रूटीन नहीं बदलता। कमाल है। वो विंड स्क्रीन के पार देखकर बोली। फ़ाइज़ा को एकदम ख्याल आया और वो तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ के बोली, क्या वो तुमसे नहीं मिलता? तानिया ने तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिला दिया। फ़ोन तो करता होगा। इस बार तानिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फ़ाइज़ा चुप सी होगी। वाह शयान साहब, पास थे तो जलाते थे, दूर गए तो राख कर डाला। इस पर क्या शाने बेनियाजी है कि वो मुड़कर खबर तक न ली। मगर क्या मेरे रत जगे इतने ही बेअसर थे कि तुम्हारी नींद ना उड़ सके? उसकी आंखों में चुभन बढ़ने लगी तो उसने डैशबोर्ड पर रखे सन ग्लासेस उठाकर आंखों पर चढ़ा लिए। चोट तो लग चुकी, अब जख्म दिखाने का क्या फ़ायदा। गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी। फ़ाइज़ा ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और उतरने लगी तो ध्यान आया वो अभी तक अपनी सीट पर है और उसने इंजन भी बंद नहीं किया। तो पलट कर पूछा, तुम अंदर नहीं आओगी? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, वो बदसतूर सामने देखते हुए बोली। और फ़ाइज़ा के उतरते ही वो जन्नाटे से गाड़ी भगा लेगी। काफ़ी देर तक बेमकसद शहर की सड़कों पर गाड़ी भगाने के बाद भी खून के उबाल में कमी नहीं आई तो थक कर उसने घर के रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र मुलाजमा पर पड़ी तो उसे पुकार कर कहा, खदीजा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर वो रुकी नहीं और सीधी अपने रूम में आ गई। जज्बाती टूट फूट के बाद अब उसके एसाब शकिस्ता होने लगे थे। उस पर हिजान तारी था। दरवाज़ा लॉक करके उसने हाथ में पकड़ी हर चीज़ बेड पर फेंकी और ख़ुद कारपेट पर घुटनों के बल गिर पड़ी। होले होले लरसते भी खुद कलामी कर रही थी। मेरा एतबार तोड़ने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी शयान। अगर कोई वजह होती तो तुम मुझसे लड़ते, मुझे इल्ज़ाम देते, मगर तुम तो बिना कुछ के ही पलट के लफ्ज़ों का आज़ाद दे जाते। मैं कब तक तुम्हारी खामोशी सुनूं? कुछ तो बोला होता शयान। मैं समझा लेती खुद को कि तुमने धोखा दिया है, मगर अब क्या करूं? खुद को कैसे समझाऊं? अब उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। दर्द से फटते अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े उसका गला रुंध गया था। कसूर तुम्हारा नहीं, गलती मेरी है। मैंने क्यों तुम पर एतबार किया? मैंने क्यों तुमसे मोहब्बत की? क्यों मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ? जब साथ ही नहीं देना था तो तुम क्यों मेरे पास आए? अगर जाना ही था तो मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में आने का तुम्हें क्या हक था? पास आकर दूर जाने का, झलक दिखा कर छुप जाने का खेल बहुत बार खेला होगा। वो अब चिल्ला रही थी। बहुत सौ को तड़पाया होगा, बहुत होंगी जो तुम्हारे लिए रोती होंगी, मगर मैं तानिया फारूकी हूँ, उन बहुत सी लड़कियों से बहुत अलग। मुझे तड़पता देखने की तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी शयान। ना मैं तड़पूंगी ना रूंगी। तुम वो नहीं जिसके लिए मैं खुद को बर्बाद कर लूँ। वो कह रही थी कि वो नहीं रोएगी, मगर दोनों बाजू सख्ती से अपने गिर्द लपेट कर पेशानी घुटनों से टिकाकर गुठरी बनी वो फूट फूट कर रो रही थी। सूरज ढल चुका था और कमरे में अंधेरा भरने लगा, लेकिन तानिया ने लाइट जलाई ना ही पर्दे समेटे। वो बेहिस्सो हरकत औंधे मुंह कारपेट पर सिमट कर लेटी थी। अब वो रो नहीं रही थी, उसका चेहरा सता हुआ था, बाल बेतरतीब हो रहे थे, बिखरे बिखरे हुलिये के साथ उसके सर में दर्द की तेज लहरें उठ रही थीं। कई घंटों तक रोने की वजह से वो थक चुकी थी और अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि उठकर बेड के दराज से पेन किलर ही निकाल कर ले। फिर कुछ वक्त से ही सही, मगर उसने खुद को हिलने पर आमादा कर लिया। वो खिसक कर टेबल की तरफ गई। टेबल के सहारे से बैठने के बाद उसने जग से पानी गिलास में डाला और गिलास पकड़कर उठते हुए बेड पर आकर बैठ गई। फिर दराज खोलकर पेन किलर निकाली और 2 गोलियां पानी के साथ लेकर गिलास साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेट गई। उसका दिल चाह रहा था कि सो जाए, मगर आंखों में दर्द इतना ज़्यादा था कि बंद करना भी मुश्किल था। वो चट लेटी नींद आ जाने का इंतज़ार करती रही। अगली सुबह शॉवर लेकर ड्रेसिंग रूम में आई तो आईने में अपनी ही सूरत देखकर हैरान रह गई। आंखों के गिर्द हल्के सूजे हुए थे। नहाने से चेहरे की अज़मुर्दगी तो कम हो गई थी, मगर जर्दी झलक रही थी। उस हालत में सबका सामना करना मुश्किल लग रहा था, मगर उसके सिवा चारा भी क्या था। गीले बालों को ड्रायर से खुश करके वो डाइनिंग रूम में आ ही गई। उमैर उज़ैर तो कॉलेज जा चुके थे और दादा जान भी नाश्ता उनके साथ करके उस वक्त स्टडी में चले जाते थे। मरियम अलबत्ता नूरुल हुदा के साथ ही नाश्ता करती थी और जब से तानिया ने ऑफिस जाना शुरू किया था वो भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद होती। नूरुल हुदा उस पर नज़र पड़ते ही चौंके। उन्होंने मरियम की तरफ देखा। उनके तासुरात भी नूरुल हुदा से मुख्तलिफ नहीं थे। बहादुर, मेरे लिए चाय ले आओ। स्लाइस पर बटर लगाते हुए वो खुद को नॉर्मल पोज करने की ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोली। तुम्हें क्या हुआ है? मरियम उसके पोज करने से ज़रा भी मुतमईन नहीं हुई थी।
तानिया को भी अंदाज़ा था कि कुछ भी नहीं से काम नहीं चलेगा। उसने चाय का कप उठाया जिसे अभी अभी बहादुर छोड़ कर गया था और सेब लेकर बोली, अब तो ठीक हूँ मगर तबीयत ख़राब हो गई थी इसीलिए ऑफिस से जल्दी उठना पड़ा। फिर जो टैबलेट लेकर सोई हूँ तो 1 घंटा पहले ही आँख खुली है। उसने गैर महसूस अंदाज में कल सारा दिन कमरा नशी रहने की भी वजाहत कर दी। मुझे अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी मामा, वो उनकी ताकीद के जवाब में बोली। मरियम तो कदरे मुतमईन होकर नाश्ता करने लगी मगर नूरुल हुदा मुस्तकिल उसे देख रहे थे। हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था मगर उनका इस तरह देखना तानिया को परेशान कर रहा था। फिर भी वो आराम से नाश्ता करती रही। आखिर उन्होंने तानिया पर से निगाह हटा ली। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर ही रहकर आराम करो। मैं भी यही सोच रही हूँ, उसने कप में झांकते हुए कहा। नूरुल हुदा अपनी जगह से उठे और उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ किया। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है मगर उस वक्त तकलीफ और भी ज़्यादा होगी जब तुम अपनी तकलीफ मुझसे छुपाओगी। तानिया को उनके चेहरे पर वही खोया हुआ सा तासुर नजर आया जो अक्सर तानिया को देखते हुए उभर आता था। वो झुके और उसके माथे को चूम लिया। उनकी चौड़ी पुष्ट को देखते हुए तानिया हैरान हो रही थी। ना उसने कुछ कहा, ना पापा ने कुछ पूछा। उन्हें फिर शक कैसे हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गई और जब यकीन हो गया कि नूरुल हुदा चले गए तो लाउंज में आकर वक्त गुजारी के लिए टीवी ऑन करके बैठ गई। मरियम के जाने की तैयारी में लाउंज से होकर गुजरी। तानिया ने दूर से ही उन्हें बाय कहा। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर कुछ सोचती नज़रों से ग्लास वॉल के दूसरी तरफ तानिया को देखकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में आ गई। कुछ खास प्रोग्राम देख रही हो? नहीं। फौरन सीधे होकर उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी। तुमसे बात करना चाह रही थी। वो सोफे पर उसके साथ बैठती बोली। कहीं? वो हमतन गोश हुई। बात तो कोई नई नहीं है पर अरूसा का इसरार पड़ता जा रहा है। हालांकि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में उससे कह चुकी हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, मगर वो कहती है शादी ना सही मंगनी तो की जा सकती है। और सच पूछो तो मुझे भी उसकी बात पसंद आई है। फिलहाल मंगनी कर देते, फिर जब तुम जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाओ तो शादी कर देंगे। और क्या पता एक बार अंसर के साथ रिश्ते में बंधकर शादी का फैसला तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। फिर उसे चुप देख कर बोली। चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ मामा, वो हंसी। पुल से रात पर ठहरूं या हट जाऊँ कुछ हासिल नहीं होगा, पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊँ तो सब गंवा दूंगी, मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही, लेकिन ज़िंदगी कुछ अता तो करेगी, पर नफ़ा किस में है और नुकसान कहाँ, हिसाब करूँगी तो ही पता चलेगा। क्या कह रही हो? वो खाक भी ना समझी। तानिया उन्हें देखकर मुस्कुराई। आप चाहती है ना मैं शादी कर लूँ? हाँ, मैं सोच कर जवाब दूंगी। पत्थर में जोंक तो लगी। उसकी बात पर मरियम नहाल हो गई। बस अब चाहिए तुम कुछ भी जवाब दो। मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया उन्हें खुश देखकर शर्मिंदा होगी। अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए वो उनकी खुशियों से कितना दूर हो गई थी। जाने से पहले कितनी देर तक वो उसे खुद से लिपटा कर प्यार करती रही। उसने कह तो दिया कि सोचेगी, फिर कुछ सोचने की कोशिश में वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया, उसे कुछ एहसास भी नहीं था। किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी और अपने बराबर बैठे उमैर को देखकर उसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। वो यूनिफॉर्म बदल चुका था, जिसका मतलब था उसे कॉलेज से आए काफ़ी देर हो चुकी थी। तानिया को यकीन नहीं हुआ कि वो पिछले 3-4 घंटों से एक ही हालत में बैठी थी। बैठे बिठाए खो जाने की आदत या दादा जान की है या फिर पापा की? आपने ये आदत कब से अपना ली? इतनी देर से आपको आवाज़ दे रहा हूँ मगर आप हैं कि कुछ सुनती ही नहीं। मैं कुछ सोच रही थी। वो उठते हुए बोली। उज़ैर कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और दादा जान भी नहीं है। चलो फिर। वो डाइनिंग रूम में आ गई। उसे भूख नहीं थी पर सबका साथ देने को उसने थोड़े से चावल प्लेट में निकाल लिए। आप ही सुबह बता दिया होता, आप छुट्टी करने वाली हैं, मैं भी कॉलेज नहीं जाता। बहुत अच्छा किया मैंने जो सुबह नहीं बताया, वरना बेकार कॉलेज बंक करते। वो उज़ैर के तासुब से बोलने पर बोली तो उमैर हंसा। यूँ भी उसके साथ पूरा दिन बिताना आसान नहीं, वो तो मेरी हिम्मत है जो इसे झील लेता हूँ। दादा जान, तानिया और उमैर हंसने लगे तो वो मुंह बनाकर शिकायती अंदाज में बोला। तुम दोनों क्यों हर वक्त उसे छेड़ते रहते हो? उसकी दादरसी में दादा जान ज़रा रौब से बोले तो उमैर झट से बोला। हमें छेड़ने की क्या ज़रूरत है, ये पैदाइशी छेड़ा हुआ है। और फिर तानिया के साथ मिलकर हंसने लगा। बात सही थी, इसलिए अजहर फारूकी भी मुस्कुराए तो उज़ैर बेचारा और रूहान सा हो गया। रोते नहीं बेटा, तुम इन नामाकूलों को छोड़ो और खाना खाओ। उन्होंने उसे पुचकारते हुए नवाला उसके मुंह में रखा तो वो सचमुच बहल कर खाने लगा। देखा, तुम तीनों में एक उज़ैर ही है जो सीधा और मासूम है, और तुम दोनों हर वक्त उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते हो।
उज़ैर ने यूं गर्दन अकड़ा कर देखा जैसे अजहर फारूकी ने उसे कोई एहसास बख्शा, और उसकी इस हरकत पर वो दोनों और भी हंसने लगे। वो भी एक सुहानी शाम का मंजर था। गर्म घास पर भरी हुई ट्रे थामी वो सहज सहज कदम उठाती लॉन में रखी चेयर्स की तरफ बढ़ती चली आ रही थी, जिन पर पराजमान अजहर फारूकी और नूरुल हुदा दुनिया और माफिया से बेखबर न जाने किन बातों में उलझे थे। उन दोनों ने उसकी आमद को महसूस नहीं किया था, बल्कि नूरुल हुदा तो उस वक्त चौंके जब ट्रे रखने के लिए झुकते हुए उसका कास्ती दुपट्टा शानी से सिरक कर घुटने पर रख के उनके हाथ पर आ पड़ा। उसने एक हाथ से दुपट्टा कंधे पर डालते हुए दूसरे हाथ में बड़ा सा कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार एकदम ही अपने सामने फैला लिया। वो सुनसी हो गई। ये हो ही नहीं सकता था कि अजहर फारूकी ने उसे अपनी तरफ कप बढ़ाते ना देखा हो। नूरुल हुदा को भी उनकी हरकत अच्छी नहीं लगी थी। वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? अजहर फारूकी ने ज़रा सा अखबार का कोना नीचे करते हुए सरसरी से अंदाज में कहा। टेबल पर रख दो ना बेटा। वो फिर से अखबार अपने सामने किया। उसने कप उनके सामने रखा और उसी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। हर बार अपने नज़रअंदाज किए जाने पर उसकी कैफियत इतनी शदीद हो जाया करती थी। नूरुल हुदा उसकी इस कदर हसासियत पर अक्सर हैरान और कभी कभार तो परेशान हो जाते। उसे उस ट्रांस से बाहर लाने के लिए नूरुल हुदा ने कप उठाकर उसके सामने किया और अपनी आदत के मुताबिक बशाशत से बोले, क्या आज शाम की चाय पीना भी छोड़ दी है? उसने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा और सादगी से मुस्कुराते हुए उनके हाथ से कप लेकर घूंट घूंट पीने लगी। घर में बेकार बैठकर क्या करोगी? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? उन्हें लगता था उसकी हद से बढ़ी हुई हसासियत की वजह तन्हाई है। हालांकि घर में बाबा जान और ख़ुद वो मौजूद थे, मगर नूरुल हुदा अपनी मसरूफियत की वजह से उसे ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे। और बाबा जान गो के रिटायर्ड थे, मगर अलग थलग रहना पसंद करते थे। उन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी जाने से उसकी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी और फिर शायद उसकी जज्बातियत भी कम हो जाए, मगर उसने फ़ौरन ही उनके ख्याल को मुस्तरद कर दिया। बीए कर लिया काफ़ी है, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये क्या बात हुई? वो टोक कर बोले। बस। कुछ समझ नहीं आया तो उसने कंधे उचका दिए। बस क्या? वो कभी कभार ही बड़ेपन का रोब झाड़ते थे और जब ऐसा करते बड़े आराम से मरूब हो जाती, जैसे अभी हो गई थी। वो उसी लहजे में बोले, मेरा ख्याल है एडमिशन तो ओपन हो चुके होंगे, मैं किसी दिन फॉर्म ले आऊँगा, तुम बस फिल कर देना। मगर हादी भाई, मुझे आगे नहीं पढ़ना। वो मनमनाई। क्यों? उसका अंदाज हनूज वही था। मुझे कोर्स की किताबें अच्छी नहीं लगती। बड़ा मासूम सा अंदाज था। नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। फिर क्या अच्छा लगता है, बताऊं? वो उसे भूलपन से जोश से बोली, फिर उनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर शुरू हो गई। उसने सर उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखा और कहा, मुझे आसमान को देखना अच्छा लगता है। उसमें उड़ते बादल और परिंदों की चहकार, सूरज की किरणें और चांद की चांदनी, फूल, तितली खुशबू, सहरा में बहती हवा की आवाज़, समंदर की लहरें, सर्दियों का मौसम। बोलते बोलते वो अचानक हंस पड़ी। फिर उन्हें देखकर बोली, हादी भाई, मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती है। वो हंस पड़े, मगर वो एकदम से चुप होकर कुछ सोचने लगी। फिर उसने कप टेबल पर रखा और अपनी जगह से उठकर घास पर बाबा जान के कदमों में बैठ के जो लाताल्लुक से अखबार में गुम थे, उन्हें मतवज्जे करने के लिए उसने अपने हाथ अजहर फारूकी के घुटने पर रख दिए। उन्होंने अखबार हटाकर उसे देखा। बाबा जान, आर्ट्स काउंसिल में नो आमोज मुसव्विरों की पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। मैंने भी अपना नाम दिया था और पता है मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 17 दिसंबर से 3 दिन की नुमाइश है, आप आएंगे ना? जोश में बोलते आखिर में उसका लहजा मिन्नत भरा हो गया था। तुम जानती हो कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं। उन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया था। उसी से हौसला पकड़कर वो बोली, मगर थोड़ी देर को तो जा सकते हैं बाबा जान। ये मेरी पहली एग्जीबिशन है और इस बहाने आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं, इस बार मैंने स्टिल लाइफ और लैंडस्केपिंग के अलावा स्केप्स भी बनाए हैं और कैलीग्राफी तो मैंने पहली बार ही की है। पिछले महीनों में मैंने इतने सारे नए कैनवस बना लिए हैं और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर दिखाना मकसूद है तो आज ही एक नशिस्त तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं, लेकिन ये मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊँगा। आर्मी लाइफ के दौरान भी पुरहजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था और अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारते घर तक ही महदूद हो गया हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाता अगर बाबा जान उसका दिल रखने की खातिर कुछ देर चले जाने की हामी भर लेते? नूरुल हुदा ने तासुब से सोचकर उसे देखा। उसने अपनी आंखें झुका रखी थी, फिर भी उसकी पलकों पर लरसते आंसू नूरुल हुदा को साफ नजर आए थे। नूरुल हुदा बेचैन होकर उठे और उसके पास वाली चेयर पर बैठकर टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके हाथ के नीचे से निकाला और उठकर यूं ही रुख फेरे अंदर की तरफ बढ़ गई।
जूतों समेत बेड पर चत लेटे नूरुल हुदा को अपनी कनपटियों पर नमी का एहसास हुआ था। वो उठ बैठे, अपने चेहरे पर से आंसुओं को साफ करके हाथ अपनी आंखों के सामने किया और पोरों पर ठहरी नमी को देखने लगे। जो आज तुम यहाँ होती तो देखती कि जो आंसू तुम्हारी आंखों से ना बह सके वो 27 सालों से मेरा चेहरा भिगो रहे हैं। बेसबब तो नहीं तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। जब्त का हौसला बढ़ा लेना, आंसुओं को के छुपा लेना, कांपती डूबती सदाओं को चुप की चादर से ढांप कर रखना, बेसबब भी कभी हंसना, जब हो बात कोई तलखी की मौजूए गुफ्तगू बदल देना। बेसबब तो नहीं तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। वो थके थके से उठे और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। पोर्च की तेज रोशनी में तानिया बार बार हॉर्न बजा रही थी। फिर अजहर फारूकी चंद लम्हों बाद अपने पोतों के साथ नजर आए। संभलने के लिए हमेशा ठोकर की ज़रूरत क्यों होती है? फ्रंट डोर खोलकर बैठते अजहर फारूकी को देखकर उन्होंने सोचा था। हाथ में बुके पकड़े तानिया ने अस्पताल के इंफॉर्मेशन काउंटर पर शयान के फादर का नाम बताकर उनका रूम नंबर पूछा। रूम नंबर 5। दुबली पतली लड़की ने कंप्यूटर से चेक करके उसे बताया। थैंक्स कहकर तानिया लिफ्ट की तरफ आई। लिफ्ट से निकलते ही तानिया को सामने से फाइजा आती दिखाई दी। पास आने पर वो बोली, कहाँ जा रही हो? घर, फाइजा ने जवाब देकर पूछा। मगर परसों क्या हुआ था? थोड़ी देर का कहकर तो तुम तो गायब ही हो गई। एक ज़रूरी काम याद आ गया था, उसने कहा। फाइजा घर जाने का इरादा तर्क करके उसके साथ ही चलते हुए रूम में आ गई। पहला कदम कमरे में रखते ही तानिया ने शायान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर जानबूझकर नज़रअंदाज करके वो बेड पर लेटे शख्स की तरफ आ गई। बेड के साथ ही रखी मेज़ पर बुके रखकर उसने हल्की आवाज़ में पूछा, इनकी तबीयत अब कैसी है? काफ़ी बेहतर है। अपने पीछे से शायान की भारी आवाज़ सुनकर वो संभल कर पलटी। कोशिश करके हैरान होते हुए बोली, तुम? फिर कसदन मुस्कुराई। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी सब्ज आंखों वाली औरत पर पड़ी। उसने फ़ौरन उन्हें सलाम किया और फाइजा की तरफ देखने लगी कि उनका तारुफ करवाएगी। खुद से वो समझ नहीं सकी थी कि वो शायान की मदर है या कोई रिश्तेदार। ऐसा ही सवाल तानिया के लिए उनकी आंखों में था। फाइजा ने दानिस्ता उन सवालों से आंख चुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ हमारी आवाज़ से अंकल की नींद खराब होगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई तो तानिया और शायान भी आगे पीछे बाहर आ गए। तानिया फाइजा के साथ ही बेंच पर बैठ गई। शायान दीवार से कमर टिकाए सामने खड़ा था। इतनी देर में पहली बार तानिया ने उसकी तरफ देखा। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहने उसका हुलिया रफ सा था। काले बाल बेतरतीबी से माथे पर पड़े थे, शेव पड़ी हुई थी और आंखों के नीचे हल्के नजर आ रहे थे। अपने फादर के लिए बहुत परेशान है। तानिया ने दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस की। बहुत अपसेट हो? आखिर उसने बात शुरू की। अबू मेरी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर उनकी तकलीफ़ नहीं। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। तानिया ने दिल से कहा। आजकल क्या कर रही हो? वो बात बदलने को बोला। कुछ खास नहीं। तो करो ना, और कितना इंतज़ार करवाओगी? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शादी की बात करो। वैसे तुम दोनों ने बहुत मायूस किया, कैरियर के पीछे ही पड़ गए हो, वरना मेरा ख्याल था MBA की डिग्रियाँ मिलते ही तुम दोनों डोली में बैठ जाओगी। जानबूझकर उसने ये टॉपिक शुरू किया। इस ख्याल से तानिया को उस पर गुस्सा आने लगा। फाइजा भी कुछ चिढ़ गई। तुम अपना ख्याल छोड़ो और अंकल का ख्याल करो। कितना अरमान है उन्हें तुम्हारे सर पर सहरा देने का। यूँ भी उम्र में तुम हम दोनों से ही 3 साल बड़े हो। पहले तुम्हारी शादी होगी, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। मैं इसकी शादी तक इंतज़ार नहीं करने वाली। मतलब? फाइजा ने पूछा। मैं शादी कर रही हूँ। वो गुस्से में बिना सोचे समझे ही बोल गई। ज़बरदस्त। शायान की आवाज़ पर उसने उसकी तरफ देखा। अगर कोई उम्मीद तानिया के दिल में थी भी तो उस वक्त ख़त्म हो गई। शायान के चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं चुप रही थी। कब कर रही हो शादी? बहुत जल्द। वो जुज़बुज़ होकर बोली। शादी में बुलाओगी ना? ऑफ कोर्स। और भला मेरी शादी तुम्हारे बिना हो सकती है? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली तो शायान बस उसे देख कर रह गया। फिर वो फ़ौरन ही उठ गई। अच्छा फाइजा, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, मैं शाम को फ़ोन करूँगी। बाय। वो कहकर शायान की तरफ देखे बगैर तेजी से चलती लिफ्ट का इंतजार करने के बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर गई। शायान कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा उसे लम्हा लम्हा खुद से दूर जाता देख रहा था। फाइजा उठकर उसके पास आकर बोली, कभी कभी मुझे लगता है शायान, तुमने कभी तानिया से मोहब्बत की ही नहीं। उसकी आवाज़ में तपिश महसूस करके शायान ने उसे देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मोहब्बत करता हूँ इसीलिए तो। फिर होंठ काट कर बीच में ही चुप हो गया। तब तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आना चाहिए। मोहब्बत से डर जाने वाले कमज़ोर शख्स पर तरस ही आ सकता है। बोलकर वो रुकी नहीं, एक झटके से आगे बढ़ गई और शायान शकिस्ता से अंदाज में वहीं बेंच पर बैठ गया।
एंट्रेंस से अंदर पैर रखते ही तानिया ने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों को सुना। वो वहीं रुकी। अंदर मरियम के मेहमान आए बैठे थे। अंदर से आती आवाज़ों से उसने अंदाज़ा लगाया कि अरूसा भी ड्राइंग रूम में मौजूद थी, मगर वो उस वक्त किसी मेल मिलाप के मूड में नहीं थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था और लाउंज की सीढ़ियाँ ठीक ड्राइंग रूम के सामने थी और यही सीढ़ियाँ उस जीने तक जाती थी जिस पर तानिया का कमरा था। अब अगर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों तक आती तो खुले दरवाजे से उसे देखा जा सकता था। तानिया ने कुछ सोचकर दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गई। लॉन का चक्कर काटकर वो कसरे फारूकी के पिछले हिस्से की तरफ निकल आई। अब उसके सामने स्याह आबनूस का बेहद लंबा और काफ़ी चौड़ा मुनक्किश दरवाज़ा था, मगर उस दरवाजे के दोनों पटोन को पकड़कर धकेलते हुए तानिया को कुछ ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही तानिया पर जैसे तलस्म होशरुबा का कोई बाब खुला था। कम अज़ कम तानिया को ये जगह किसी जादू नगरी की तरह ही लगा करती थी। कसरे फारूकी का ये पोर्शन बाकी घर से अलग थलग था और तकरीबन ना इस्तेमाल होने वाला था। तानिया ने एक कदम उठाया और वसी हॉल में आ गई। हॉल के दोनों जानिब आमने सामने दो दरवाजे थे। बाएं तरफ का दरवाज़ा डाइनिंग रूम में खुलता था, जिसके एक जानिब किचन मौजूद था। डाइनिंग रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा था जो राहदारी से जुड़ा था, जिसके आगे लाउंज था। दूसरा दाएं जानिब का दरवाज़ा एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचता, जिसके आगे सिटिंग रूम और उससे आगे लाउंज था। लाउंज में बाएं जानिब अजहर फारूकी का कमरा और उसके साथ ही लाइब्रेरी से मुल्हिक स्टडी थी, जबकि दाएं जानिब रहायशी कमरे थे और दाएं जानिब से सीढ़ियाँ ऊपर के कॉरिडोर तक जाती थी, जहां दोनों जानिब कमरों की कितारें थीं। यानी अगर कोई इस हॉल के एक दरवाजे से निकलता तो पूरे कसरे फारूकी का चक्कर काटकर वापस यहीं आ पहुंचता। इस पोर्शन की एक अनोखी खसूसियत थी कि वो बेक वक्त घर के हर हिस्से से जुड़ा भी था और पूरे घर से अलग भी था। हॉल के दाखिली दरवाजे के सामने दबेस कालीन का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आरामदेह फर्नीचर उसे नशिस्तगाह का रूप दे रहा था। दाएं तरफ की दीवार पर बड़ा सा आईना था जिस पर आर्ट वर्क किया गया। आईने के नीचे एक छोटी मेज़ के साथ दो कुर्सियां थीं, जबकि हॉल की बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स आवेजा थीं और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक की सीट में थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियां थीं, जिनके बाएं जानिब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था जिस पर घूमने वाले डायलर के साथ पुरानी तर्ज का फ़ोन रखा था, मगर उस फ़ोन का कनेक्शन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपरी जीने के सामने एक दरवाज़ा था जिसके दोनों पट्टों से लटकती जंजीर में ताला लगा था। तानिया ने हमेशा ये सुना था कि वो कमरा स्टोर रूम है। ये जगह इतनी कुशादा थी और दरवाजे से सीढ़ियों का फासला इतना ज़्यादा था कि जीने वाले कमरे की बालकनी इमारत के सामने की तरफ से दाएं जानिब खुलती। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बालकनी की मौजूदगी काफ़ी हैरान कुन थी, जबकि बालकनी में बड़ा सा लकड़ी का झूला था और छत से विंड चाइम लटक रहे थे, जिनका मधुर संगीत चांदनी रात में मबहूत कर दिया करता था। और इजाफी हैरत की बात तो ये थी कि बालकनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मॉर्निंग की खूबसूरत बेल हरी भरी थी, लेकिन तानिया ने कभी किसी को उन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्द से तो पूछना ही बेकार था, मगर नौकरों से भी एक आध बार उसने जानना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी इस कमरे में नहीं गए। उस हॉल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियों और जीनों की रेलिंग, हद तो ये कि तमाम फर्नीचर भी मुनक्किश आबनूसी लकड़ी का था। यूँ तो सारा कसरे फारूकी ही सफ़ेद संगे मरमर से बना था, मगर स्याह और सफ़ेद का ये पुरकशिश इम्तजाज घर के और किसी हिस्से में नज़र नहीं आता था। ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रेनोवेशन तो होती रहती, मगर उस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाएं तरफ के दरवाजे से गुजरकर डाइनिंग रूम में आते तो तानिया महज चंद सेकंड ही लगे थे, मगर उसे यूं लगा जैसे एक अहद से गुजर आई हो। लाउंज में कदम रखने से पहले उसने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ पर ध्यान दिया। वो सब बदसतूर गपशप में मसरूफ थे। तानिया इत्मीनान से अजहर फारूकी के कमरे तक आई और दस्तक देने वाली थी कि किसी ने कहा, कर्नल साहब अपने कमरे में नहीं है। तानिया ने मुड़कर बहादुर को देखा जो ड्राइंग रूम में चाय लेकर जाता उसे देखकर रुक गया। कहाँ गए हैं? उसने पूछा। ज़मीनों पर गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। आपको कुछ काम था तानिया बीबी? नहीं, तुम जाओ। तानिया ने उसे जाने को कहा, फिर खुद ही उसे आवाज़ देकर रोक लिया। बहादुर जी तानिया बीबी। वो रोबोट की तरह वापस मुड़ा। जब मेहमान चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दादा जान के कमरे में हूँ। ठीक है जी। वो कहकर चला गया तो तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में आकी। कुछ देर तक तो वो यूं ही खड़ी रही जैसे सोच रही हो अब क्या करें। फिर उसने हैंडबैग बेड पर डाला और ख़ुद भी जूते उतार कर आराम से लेट गई। वो जिस जाविये से लेटी थी, आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। करने को और तो कुछ था नहीं। वो यूं ही उस तस्वीर को देखने लगी।
یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کشادہ پیشانی پر تیکھے ابرو کمان کی طرح کاٹدار تھے، بڑی بڑی سنہری مائل غلافی آنکھیں جن پر خمدار پلکوں کی گھنی جھالر تھی، ستواناک گال سرخی مائل بھرے بھرے تھے، ہونٹ گداز اور تھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت کندنی تھی جس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں موتیوں کے آویزے لٹک رہے تھے اور کندھوں پر پڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو، پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندیاتے نہیں، باندھ لیتے ہیں یوں کہ پھر کسی اور طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے ان کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنی بار وہ سامنے آئے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اسی طرح جیسے اب تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی محویت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل محو ہو چکی تھی، مگر اس کے محویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے ان کے جواب جان پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے مگر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنی آنھی گرفت میں لے لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور الہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لایعنی آواز ہی نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی دیر تک نور الہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے تھپکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے کے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا، پھر اس نے خوف کے مارے کبھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی اس کا ذکر شجرے ممنوع ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کوپ سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے والی تھی کہ ٹھٹک کرو کہ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی تھی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھوں تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔